Okay, so I had started the recording. Now, क्या हुआ था? it was only practice. Okay, only practice. You can see the recorded lecture. If you have not seen, then I'll suggest you to go through. Okay, we had practiced the all conditions till lecture 15, and 16 and 17 was left over for her to give the answers. But today we'll move ahead with lecture 18 and 19. We'll again came back to 16 and 17 after 2-3 days for the mocks. Now we'll move ahead on lecture 18, 19 and 20. Okay. Now we can see some of the conditions when we will proceed for the lending and some of the conditions which are left over in the cruising situations. So before proceeding ahead, please do let me know one flight plan using version 2 and chart number 7. Go ahead, please. Give me one plan. Chart number 7, version 2. Kilo India Alpha, are you available to give the answer or you are on duty? Okay, anyone can go ahead with the plan. Okay. Mumbai to Bengaluru. Hold on. Say again. मुंबई टू बेंगलुरु. ओके, ठीक है, बताता हूँ. मुंबई टू बेंगलुरु. हाँ, मतलब हाँ, अरे नहीं, वो अपने मन में मैं सोच रहा हूँ. Why are you thinking in your mind? Directly let it came to the paper. Don't worry. अच्छा, ठीक है. हाँ, रूट वही रहेगा. एयरक्राफ्ट ले लेते हैं. एयर इंडिया, एयर इंडिया 457, एयरबस A320, Wake turbulence medium, departure aerodrome Mumbai, departure Mumbai, arrival Bengaluru, alternate welcome, flight rule, IFR, type of flight schedule, all equipment standard, time of departure is 050. रूट है, रूट में देख लेता हूँ. रूट है विस्की 56 साउथ, विस्की 56 साउथ, फ्लाइट लेवल 280, time of departure. Flight level 280, right?
हाँ 280। और कुछ तो छूटा नहीं है, बल्कि सुंदर Any other information? नहीं। Okay. Now let me go through your plan. You are saying you are Air India 457, Airbus 320, vector turbulence is medium. Mumbai to Bangalore, alternative is Belgaum. Under हाँ हाँ IFR, flight, all equipment is standard. Time of departure 0500, route is Whiskey 565. Flight number 280. 565 है। Whiskey 56 south, sorry. हाँ I forgot to write something wrong. It is 56 south. Okay. Any other information is nil. Done. Now, okay. Achha. Please do let me know who are the ready for interactions at least. India Victor Papa is on duty. Who others have joined? Give me the readability check. समझा नहीं मैं, आपकी आवाज नहीं आई, क्या बोला आपने लास्ट में? मैंने पूछा who are the ready for the interaction in class, means कौन कौन आंसर करने के लिए रेडी है? मैं रेडी हूँ। Okay, any other ready for the station? answer. अच्छा, और कौन ज्वाइन किया है? Just a second. Okay. चलो, I'll explain one condition and then let you know what does it really mean. ठीक है. Now, something is known as relay race. Athletics में एक टाइप का, रेस हाँ, in general life, field में नहीं. अच्छा Something is relay race. Who knows about this? आपने कभी इस चीज को पहले सुना है या फिर जानते हैं about this game? रिले रिले What is रेस the relay race? और रनवे हाँ. वगैरह पे जो करना करते हैं। No, no, that is FOD run. रनवे पे जो करते हैं वो FOD चेक करने के लिए. Who know about this? Kilo India Alpha, do you know about that? Please do let me know. No, sir. Achha, hold on. Okay. I'm sharing the screen. Please confirm if it is visible. Okay. आप सबने कभी गेम तो ओलंपिक पता है. Yes, about that only I was asking. ठीक है? Yes. See, something is relay race in your school time or in college time, or if you are interested in Olympics or any athletics, you might have seen one race. What happened? You can say in this, like one athlete is passing one pellet to the others. Okay, that's why it is known as relay. इस गेम में एक्चुअली होता क्या है? Let me show you. There will be a track of, suppose रेस का नाम है 4x100 meters relay race. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? There will be a track of 100 meters, right? And 4 है means 4 रनर यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे. What will be done? पहला एथलीट हाथ में एक वुडन का पैलेट लेगा या फिर वुडन एक पीस लेगा अपने हाथ में. He will complete the 100 meter
and pass that pallet to other athlete. The other one also complete 100 meter of race and pass that pallet to third one. Third one will pass that pallet to fourth one upon completing the 100 meter race. Okay, and again fourth one will complete the 100 meter, and this will be known as finish line. So basically you can see these 4 participants are completing one complete game. इस गेम को पूरा करने के लिए 4 अलग अलग एथलीट की जरूरत पड़ी. इसमें क्या हो रहा था, दैट पैलेट जो लकड़ी का पीस है, दैट वाज पासिंग ऑन, एक एथलीट से लेके दूसरे एथलीट तक, राइट, उसको पास किया जा रहा था. एज यू कैन सी, सामने से एथलीट दौड़ता, पीछे से एथलीट दौड़ता हुआ आएगा और हाथ में वुडन पीस को आगे वाले को पकड़ा देगा, लाइक दैट, एंड हुएवर विल कम फर्स्ट दे विल विन द रेस. तो इसको बोलते हैं रिले. ठीक है, are you getting the term relay? What does it really mean? Victor Romeo Lima, relay का मतलब समझ में आया? Passing of message is known as relay. Yes, no anything? समझ में आ रहा है? क्लियर है. हाँ. Now क्या होता है? Suppose we are on one aircraft, ठीक है, and we have RCF with tower या फिर any ATC. We don't have point to point communication, or simply we are having no communication in between our aircraft and ATC. इन दोनों के बीच में communication established नहीं है. But we came to know there is another aircraft which is saying कि yes, I can hear you. मतलब हमारे और आपके बीच में communication है. जब आप transmitting blind करते हो, तो what you are basically doing, कि me and ATC इन दोनों के बीच में communication नहीं है. So what I'll do, I will blindly transmit, let others listen, कि कोई सुन पा रहा है क्या. तो उधर से suppose एक call आ गया कि yes, I can hear you. So first station and second station was unreachable to each other, but the third one is saying yes, I can hear you. तो हम इसको बोलेंगे कि ओके, अगर आप मेरे कम्युनिकेशन को सुन पा रहे हो, then please relay my message to the tower, यानी आप मेरे मैसेज को पास ऑन कर दो to the ATC, like that, and whatever ATC will tell, say exactly as it is to me. Clear? यानी हम इस थर्ड एयरक्राफ्ट को बोलेंगे कि आप मेरे मैसेज को रिले कर दीजिए, वहां तक पहुंचा दीजिए, और वो जो कुछ बोलेगा वो आप मुझे वापस पहुंचा देना. ठीक है? पासिंग ऑन. नाउ हाँ, तो पासिंग ऑफ मैसेज इज नोन एज रिले. नाउ जब आप किसी दूसरे को पूछते हो कि मेरे मैसेज को पास कर दीजिए, दैट टाइम यू आर सेइंग request relay. Okay? That time you will say by using the phrase request relay. हम request कर रहे हैं relay करने के लिए. And when you actually passing the message, that time you will use relaying. मैं relay कर रहा हूँ. So how that can be used? Have a look. Suppose while transmitting blind, ठीक है, आपने एक blind transmission call दिया regarding the position report. तो क्वेश्चन रहेगा, जैसे ही आपने मान लो कि क्वेश्चन नंबर 2 था RCF कंडीशन, और ATC ने RCF कंडीशन को सिमुलेट किया कि आपके आवाज को मैं नहीं सुन पा रहा हूं, तो आपने चूज किया कि ओके आई विल गिव ब्लाइंड ट्रांसमिशन. ठीक है, मींस आप सिंपली अपना पोजीशन रिपोर्ट बताते हो ट्रांसमिशन में. डन? तो उधर से एक रिस्पॉन्स लिखा रहेगा. ठीक है, कॉल साइन क्या था, हाँ, उधर से एक रिस्पॉन्स लिखा रहेगा, एयर इंडिया 457 विक्टर टेंगो रोमियो सियरा माइक, रीडिंग यू ऑन 5. ठीक है,
गो अहेड। जब आपने ट्रांसमिशन ब्लाइंड दिया ना कि एयर इंडिया 457 ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड ऑन 121.5, सॉरी 121 नहीं होगा, 123.5, आपने ब्लाइंड ट्रांसमिशन दिया तो उधर से ही कोई रिस्पॉन्स दिया कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, बोलो क्या बात है। मीन्स ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा कैसे जानेगा वो? हम रजिस्ट्रेशन नंबर तो बोलते नहीं है, क्वेश्चन फ्लाइट में आईडी ही लिखा बोलते हैं। रहेगा, क्वेश्चन अच्छा अच्छा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। जैसे सेकंड ए दिया आरसीएफ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखेगा वन एयरक्राफ्ट विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक इज एबल टू लिसन यू, ऐसा लिखा रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो मैं समझ आपको अभी गया। कंडीशन समझा रहा हूँ इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखा। ठीक है, तो इस टाइप से सपोज रिप्लाई आ गया, या फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वन एयरक्राफ्ट विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक इज एबल टू लिसन यू। So now what you'll do, we'll simply give a call. Victor Tango Romeo Sierra Mike, Air India 457, request relay to ATC. या फिर suppose you are calling to, for an instance, you are calling to Mumbai Control, तो request relay to Mumbai Control. क्लियर है ये चीज? नोट डाउन कर लो सबको। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख के आया तो आपका कॉल जाएगा विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक एयर इंडिया 457 रिक्वेस्ट रिले टू मुंबई कंट्रोल, या फिर जो भी एटीसी है रिक्वेस्ट रिले टू दैट एटीसी। क्लियर? तो उधर से बोलेगा ओके एयर इंडिया 457 विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक गो अहेड, इसने बोल दिया गो अहेड। नाउ अब जो रिपोर्ट आप एटीसी को करना चाहते थे वो रिपोर्ट आप इसको कर दोगे। को हम पोजीशन रिपोर्ट देना चाहते थे, यहाँ पे भी हम पोजीशन रिपोर्ट दे देंगे। हाउ दैट विल गो, हैव अ लुक। मुंबई कंट्रोल, ठीक है। जब आप ये बोलोगे ना रिक्वेस्ट रिलेइंग, तब जैसे ही ये बोला गो अहेड तो आप इसको मैसेज देना शुरू करोगे। क्या? हैव अ लुक। यहाँ पे मुंबई कंट्रोल नहीं लिखेंगे, हमने सबसे पहले पूछा रिक्वेस्ट रिले कि मेरा मैसेज रिले कर दो, उसने बोला ओके गो अहेड, तब आप अपना पोजीशन रिपोर्ट देना शुरू करोगे। कैसे? एयर इंडिया 457 IFR मुंबई टू बैंगलोर, ठीक है। एग्जाम में VOBL है चार्ट्स पे, VOBG नहीं। IFR मुंबई टू बैंगलोर विस्की 56 साउथ, फ्लाइट लेवल 280, रेडियल 319er, 30 nautical mile, inbound Belgaum, time now 0600, estimating Belgaum 0615, Unsal 0630, ETA Bangalore 0700। ये पोजीशन रिपोर्ट हमने इसको पास कर दिया। अब ये वाला स्टेशन क्या करेगा? They will pass our message to ATC. How? Have a look. वो बोलेगा मुंबई कंट्रोल विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक रिलेइंग किसको? रिलेइंग एयर इंडिया 457। यानी अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो मैं नहीं हूं, वो रोमियो सियरा माइक नहीं है, वो है एयर इंडिया 457। So how that will go? Relaying Air India 457, Airbus 320,
IFR मुंबई टू बैंगलोर, ठीक है। यहाँ पे मैं एयरबस 320 लिखना भूल गया, मेंशन इट। IFR मुंबई टू बैंगलोर, विस्की 56 साउथ, फ्लाइट लेवल 280, मतलब आपका पूरा पोजीशन रिपोर्ट ये उसको पास ऑन कर देगा एज इट इज, ठीक है, जैसा है वैसा ही पूरा का पूरा। डन, ऐसा करके उसने पास कर दिया और लास्ट में क्लोज कर देगा विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक। तो सपोज एटीसी ने इसको रिस्पॉन्स दिया, फिर क्या, विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक मुंबई कंट्रोल रिक्वेस्ट रिले टू एयर इंडिया 457 contact using HF, मतलब उसने कहा कि आप HF का यूज करके कांटेक्ट करो। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, ऐसा नहीं है कि यही बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। सपोज उसने बोल दिया रॉजर आस्क हिम टू चेंज ओवर टू नेक्स्ट एटीसी, या फिर कांटेक्ट यूजिंग HF, तो इसने लिख दिया सपोज कांटेक्ट नेक्स्ट एटीसी। दोनों ऑप्शन अपने को सपोज हम सिमुलेट कर रहे हैं, कांटेक्ट नेक्स्ट एटीसी, यानी हमको एटीसी से रिस्पॉन्स आया कि या तो HF पे बात कर लो या फिर अगले एटीसी से बात कर लो। तो अब ये वाला स्टेशन जो कि है विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक, ये कैसे पास ऑन करेगा मैसेज टू अस? वो बोलेगा एयर इंडिया 457 विक्टर टैंगो रोमियो सियरा माइक रिलेइंग मुंबई कंट्रोल, यानी मैं जो अब बोल रहा हूँ वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो रोमियो सियरा माइक नहीं बोल रहा है। दैट इज द मैसेज ऑफ मुंबई कंट्रोल, कॉन्टैक्ट नेक्स्ट एटीसी, ठीक है, या फिर कॉन्टैक्ट यूजिंग HF। तो आप इसको कंफर्मेशन दोगे, रॉजर चेंजिंग ओवर टू बैंगलोर अप्रोच एयर इंडिया 457। So कुल मिला के these are the simulation of relaying call. How? आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था एटीसी से, आपको पता चला कि एक एयरक्राफ्ट है रोमियो सियरा माइक, रोमियो सियरा माइक ने आपसे बात करना चाहा कि यस ये वो आपके साथ ऑडिबल है, गो अहेड विद योर मैसेज। तो आपने सबसे पहले उसको बोला कि मेरा मैसेज रिले कर दो टू द एटीसी। तो आपने अपना पोजीशन रिपोर्ट दिया और एस्टिमेट्स बताए। उसने आपके पोजीशन रिपोर्ट और एस्टिमेट को एज इट इज जैसा है वैसा ही उठा के पूरा का पूरा मुंबई कंट्रोल को चिपका दिया और लिखा रिलेइंग एयर इंडिया 457। मैं जो ये पोजीशन रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ ना, दिस इज नॉट माय पोजीशन रिपोर्ट, दिस इज द पोजीशन रिपोर्ट ऑफ एयर इंडिया 457 and whatever the message came by Air India, Mumbai Control, the same has been passed on to you। कि मुंबई कंट्रोल ने बोला देखो रिलेइंग मुंबई कंट्रोल मतलब मुंबई कंट्रोल के मैसेज को आप तक पहुंचा रहा हूं। उसने बोला कॉन्टैक्ट नेक्स्ट एटीसी, तो आपने उसका कंप्लेंस दे लिया, यस वी विल चेंज ओवर टू बैंगलोर अप्रोच। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिले बाय यूजिंग टू टर्म्स ओनली, क्या, रिक्वेस्ट रिले एंड रिलेइंग। बस अगर आप रिले करवाना चाहते हो तो आप बोलोगे रिक्वेस्ट रिले, अगर आप रिले कर रहे हो तो यूज करोगे रिलेइंग। डन, रिक्वेस्ट रिले एंड रिलेइंग। हाँ रिलेइंग कि मैं रिलेइंग रिले कर मतलब मैं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ। हाँ किसी भी कर रहा सेंटेंस हूँ। में जब आईएनजी रिक्वेस्ट लग रिले। जाता है ना, इट मीन्स वो हो रहा है। वर्ब 4, वर्ब का वर्ब फॉर्मेट 4। प्ले मतलब होता है खेल, प्लेइंग मतलब खेल रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे आई ईट मतलब मैं खाता हूँ, बट वहीं पे आप बोलोगे आई एम ईटिंग मतलब खा रहा हूँ, ठीक है। तो आईएनजी मतलब एनीथिंग इज
present continuous tense. So relaying, pass कर रहा हूँ, ठीक है? Clear to all? Clear. And hope you have noted the answers as well. Note किया. Other stations? Any doubt over this? ठीक. Silence will be treated as acceptance. ठीक है? तो आप उस चीज को ध्यान रखना कि अगर आपने हाँ ना नहीं बोला तो मैं यही समझूंगा कि आपने समझ लिया. Then I am moving ahead. ठीक है? So this was the overall communication technique for relay. Nothing but simply when you are not direct communication with any station, you are taking help of any other station to get connect with them. That's all. That is known as relay. If you want to request any aircraft that please pass on my message, then you will say request relay. If you are relaying someone's information, then you will simply say relaying. Done? Chalo. This was the cruising, and I hope ki with this example, during cruise, whatever the scenario can occur, like weather deviation, radio communication failure, RVSM fail, Mayday, pan, तो cruise करते टाइम हमारे साथ जितना situation हो सकता था, हमने सबके एक-एक example देख लिए. Now I am moving ahead towards our arrival to an airport. So suppose this is the case where your arrival airport was Bangalore, right? As per the plan. तो क्वेश्चन रहेगा आपका सिंपल पोजीशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेगा. ठीक है? क्वेश्चन रहेगा यू आर फंस गया. होल्ड ऑन. Tell me now if slides are visible. हाँ अभी विजिबल है. क्वेश्चन रहेगा यू आर 30 nautical mile to Bangalore. ये रहा क्वेश्चन. You are 30 nautical mile to Bangalore. So how that will go? Our flight level is 280. What is the control range for Bangalore? Flight level 210 only. मतलब Bangalore को call नहीं करेंगे. भले I want to land at Bangalore, but I will contact Bangalore first because of our ATC is Bangalore. Clear? तो हमेशा altitude और range का ध्यान रखना. In this case, like you might get confused for a while. कि लैंड करना बेंगलोर है, कॉल हम बेंगलोर को कर रहे हैं. हाउ दैट इज पॉसिबल? तो अगर हमको चार्ट यहाँ पे ये बता रहा है बेंगलोर का मैक्सिमम रेंज दैट इज 210, तो वी कैन नॉट कॉल बेंगलोर इन एनी केस. भले हमको लैंड बेंगलोर करना है. अगर हो सकता है कई बार ऐसा करोगे ना तो एग्जामिनर में आस्क कि यू वांट टू लैंड एट बेंगलोर एंड यू आर कॉलिंग मैंगलोर इंस्टेड ऑफ बेंगलोर. व्हाई दिस इज? सो यू कैन सिंपली से सर बेंगलोर अप्रोच is having a maximum altitude of 21,000 feet under command. My current altitude is 280. That's why I had called Mangalore control. Clear? Getting the answer, everybody? Why in this call Mangalore control will be called instead of Bangalore? जबकि लैंड आपको बैंगलोर करना है. बैंगलोर ऊपर जो लिखा है MML TMA क्या है? TMA? हाँ, आप बताओ क्या है वो? MML TMA अपॉन लिखा है फ्लाइट लेवल 210. इसका क्या मतलब होगा? तो ये भी तो उसका भी तो 210 ही है ना? और नहीं. Who will tell me? Any other station? See, if something is in denominator,
मतलब इसके ऊपर ये वर्जन 2 वाला चार्ट है जहां पे नंबरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 21,000 के ऊपर मैंगलोर कंट्रोल, और अगला जो लिखा हुआ है 210/95। ओके ओके, वो बार लगा हुआ है नीचे। क्लियर है? क्लियर है। So this call will go to Mangalore control. How this will be made? Have a look. Mangalore control, Air India 457. अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। अप्रोचिंग, आपका अप्रोच है बेंगलोर और बेंगलोर के नजदीक आ चुके हो। So simply you request for the arrival instruction. Air India 457 on 127.55. This is the simple position report call to give full introduction. Airbus 320, IFR Mumbai to Bangalore. Current position on Whiskey 56 South, flight level 280, 30 DME, inbound Bangalore. Time now 0650. Radial 357. ETA Bangalore 0700. Top of descent 0652. Request instructions to land at Bangalore. Air India 457. Getting the answer? जब हम अपने अराइवल एयरपोर्ट के नजदीक पहुंच गए तो हम रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड एट बेंगलोर, दैट इज ऑब्वियस। आपको लैंड करना है तो इंस्ट्रक्शन फॉर लैंडिंग मांगोगे, अपना पोजीशन रिपोर्ट एंड टॉप ऑफ डिसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अभी 6:50 पे हम बेंगलोर के नजदीक पहुंच गए हैं, 2 मिनट बाद हम डिसेंड करना शुरू कर देंगे। क्लियर टू ऑल? क्लियर है। तो इसके रिस्पांस में सपोज एटीसी टोल्ड, ठीक है, एयर इंडिया 457 बेंगलोर, करेक्शन, मैंगलोर कंट्रोल, descend to flight level 50 and contact next ATC। यानी इसने आपको क्या किया कि एटलीस्ट उसके एयर ट्रैफिक सर्किट जो हमने पढ़ा था उस अल्टीट्यूड तक ड्रॉप करके बोला कि उसके बाद बेंगलोर से बात कर लेना। मैंगलोर ने आपको बोला। So you can simply write here, because this action you are ready to perform. ठीक है, you can simply ready to perform, leaving flight level 280 और flight level 50, 8 नहीं समझना, 50 will contact Bangalore approach Air India 457। तो एग्जामिनर ने कहा रॉजर, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं बोला उसने। ठीक है, करोगे ना, जाओ करो। So your next call will be to Bangalore approach, Air India 457 on 122.7 Airbus 320 IFR Mumbai to Bangalore, position on flight level 50। आप 5000 पहुंचने के बाद चेंज कर रहे हो, ठीक है। या फिर सपोज यू एज्यूम कि आप रास्ते में कहीं हो तो आप बोल दोगे डिसेंडिंग टू फ्लाइट लेवल 50, या तो 5000 पे पहुंच गया हूं या फिर डिसेंड कर रहा हूं 5000 फीट के लिए, डिसेंडिंग फॉर या फिर डिसेंडिंग टू
flight level 50. Whiskey 56 south, radial 357, 20 DME assumed. ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए. 20 DME inbound Bangalore. Time now 0655. ETA Bangalore 0700. Request instructions to land at Bangalore. समझ में आई कॉल कि हमको मैंगलोर ने बोला कि 5000 फीट पे पहुंच के अगले एटीसी से बात कर लो. तो हम 5000 फीट पे पहुंच के या फिर जब हम पहुंचने वाले थे उस जगह पे हमने बेंगलोर अप्रोच को कॉल कर दिया. हमारा नेक्स्ट एटीसी कौन है? बेंगलोर अप्रोच. तो इसके रिस्पॉन्स में बेंगलोर अप्रोच में से एयर इंडिया 457 बेंगलोर अप्रोच. ठीक है, बेंगलोर अप्रोच join left hand air traffic circuit over base leg. ठीक है, and descend on या फिर land on runway 27. उसने हमको एक रास्ता बताया कि एयर ट्रैफिक सर्किट में बेस लेग पे ज्वाइन करना और लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट एक्टिवेट है और लैंड कर जाना रनवे 27 पे. अब इसको बोलो कि रॉजर विल ज्वाइन एयर ट्रैफिक सर्किट ओवर बेस लेग एंड विल सेट कोर्स, मतलब डायरेक्शन मैच करवाएंगे. सेट कोर्स to land at runway 27. Understood? आपने जब बेंगलोर से लैंडिंग इंस्ट्रक्शन मांगा तो उसने बोला लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट को ज्वाइन करना और रनवे 27 पे लैंड कर जाना. तो हमने बोल दिया ओके, बेस लेग पे ज्वाइन कर लूंगा और रनवे 27 पे लैंड करने के लिए अपना कोर्स सेटिंग मैच करवा दूंगा. इज दैट क्लियर? नहीं करो, दिखेगा चार्ट लिख रहा था मैं. क्या करो? स्लाइड थोड़ा डाउन करिएगा. हाँ, ऊपर वो बेस लेग वाला नहीं दिख रहा मुझे, बैंगलोर ने जब ट्रांसमिट किया था. एयर इंडिया 457 बेंगलोर अप्रोच. ठीक है, ज्वाइन. ठीक है, एवरी अदर स्टेशन प्लीज टू राइट ज्वाइन लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट ओवर बेस लेग and join left hand land at left hand air traffic circuit ATC. हाँ समझ गया. ATC एयर ट्रैफिक सर्किट. क्या? एयर ट्रैफिक सर्किट ओवर बेस लेग एंड लैंड ऑन रनवे 27. रनवे 27 पे जाके लैंड कर जाओ. क्लियर? एयरक्राफ्ट ने उसको रिप्लाई दिया रॉजर, ओके. Will join air traffic circuit over base leg and will set course to land at runway 27. runway 27 पे लैंड करने के लिए अपना कोर्स सेट कर लूंगा. Is that clear? किलो इंडिया अल्फा इंडिया विक्टर पापा समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये तो हो गया, आपने सेट कर लिया कोर्स या आपने बोला कि सेट कर लूंगा तो उसने बोल दिया रॉजर कि ठीक है कर लेना. अब आपकी आ गई बारी लैंड करने की. तो कैसे करोगे? बेंगलोर अप्रोच एयर इंडिया 457 करेंट पोजीशन ऑन बेस लेग. ठीक है, बेस लेग ऑफ लेफ्ट हैंड एयर ट्रैफिक सर्किट
request instructions for landing. आपने करंट पोजीशन रिपोर्ट बताया, जब बेस लेग पे पहुंच गए तो आपने बताया कि लैंड करना चाहता हूं, तो उसने बैंगलोर अप्रोच ने रिस्पांस दिया एयर इंडिया 457, ठीक है, कंटिन्यू टू लैंड एट रनवे 27, कॉन्टैक्ट नेक्स्ट ATC फॉर क्लियरेंस। मतलब आप बेस लेग पे हो, प्रोसीड करो, आगे बढ़ो। आपने बोला कि करंट पोजीशन ऑन बेस लेग ऑफ लेफ्ट हैंडेड ट्रैफिक सर्किट, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर लैंडिंग, कि बताओ कैसे लैंड करूं। ATC ने बोला कंटिन्यू टू लैंड एट रनवे 27, जो रास्ता आपने चुना है प्रोसीड करो, एंड कॉन्टैक्ट नेक्स्ट ATC फॉर क्लियरेंस, अगले ATC से बात करना क्लियरेंस के लिए। अगला ATC कौन होगा? टावर। चलो, रॉजर। चेंजिंग ओवर टू बैंगलोर टावर, और साइमल्टेनियसली कॉल चला जाएगा बैंगलोर टावर एयर इंडिया 457, करेंट पोजीशन ऑन बेस लेग, ठीक है। अब आप इसको बोलना चाहते हो, या तो बेस लेग बोल लो या बोल लो करेंट पोजीशन ऑन फाइनल्स। फाइनल्स हमने पढ़ा था ना, बेस लेग से लेकर रनवे के बीच के एरिया को फाइनल्स बोलते हैं। तो आप फाइनल्स पे हो, बेस लेग में भी आगे बढ़ गए, रीचिंग फाइनल्स, तो आप इसको बोल लो करेंट पोजीशन रीचिंग फाइनल्स, ठीक है। अब आप इसको क्या बोलना चाहते हो कि रनवे हमको दिख रहा है, या फिर रनवे हमने कैप्चर कर लिया है, या फिर रनवे से हमारा इंस्ट्रूमेंट अलाइन हो गया है। तो इसके लिए मल्टीपल सेंटेंस यूज होते हैं, सबको आप लोग अलग अलग नोट करना, जो सुटेबल लगे आप बोल दो। तो आप इसको बोल सकते हो एस्टेब्लिश्ड, नोट करो सब लोग, एस्टेब्लिश्ड होल्ड ऑन रनवे 27, मतलब हमने रनवे 27 के ऊपर अपना पकड़ बना लिया। या फिर बोल सकते हो रनवे 27 इज इन साइट, रनवे 27 दिख गया हमको। या फिर बोल सकते हो अलाइंड विथ, ठीक है, अलाइनिंग होता है ना, मीन्स आपका कोर्स और रनवे का एंगल मैच कर गया, अलाइंड विथ रनवे 27, या फिर रनवे 27 कैप्चर्ड, रिक्वेस्ट परमिशन फॉर लैंडिंग, या फिर रिक्वेस्ट लैंडिंग क्लियरेंस, सीधा एयर इंडिया 457 कि अभी मैं फाइनल्स पे हूँ, डन, या फिर फाइनल पहुंचने वाला हूँ। हमने रनवे के ऊपर अपना होल्ड बना लिया है, रनवे पर पकड़ बना लिया है, या फिर रनवे हमको सामने दिख रहा है, या फिर रनवे के साथ हमने अपना इंस्ट्रूमेंट अलाइन कर लिया है, या फिर रनवे 27 जो है कैप्चर हो चुका है। कैप्चर हो चुका है मतलब मार्कर बीकन, ग्लाइड स्लोप एंड लोकलाइजर सबके सिग्नल हमारे पास आ गए। रिक्वेस्ट लैंडिंग क्लियरेंस, बताओ लैंड करूं कि नहीं। तो अगर सब कुछ क्लियर है ATC बोल देगा क्लियर फॉर लैंड। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो लैंडिंग नॉट अप्रूव्ड, रनवे डैम या Reading you too. birds activity on runway. All other station, how do you read? अभी ठीक है, बीच में कट गया था। Okay, so I was saying कि आपने उनको बोला कि रनवे के साथ हमने पकड़ बना लिया है, कैन आई लैंड, रिक्वेस्ट लैंडिंग क्लियरेंस। तो अगर सब कुछ ओके है तो बोल देगा क्लियर फॉर लैंडिंग, तो आप भी क्लियर फॉर लैंडिंग बोल के लैंड कर जाओ। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोल देगा नेगेटिव,
रनवे 27 डैम्प, भींगा हुआ है, गीला हुआ है, कैन नॉट लैंड, या फिर रनवे 27 इज अंडर मेंटेनेंस, या फिर सर्टेन ट्रैफिक ओवर रनवे 27, ठीक है, गो फॉर अ टर्न अराउंड, गो अराउंड, ठीक है, या फिर बोल देगा इनिशिएट अ गो अराउंड, जाओ एक बार घूम के आओ फिर से लैंड करना, रनवे भी बिजी है, या फिर बोल देगा क्लियर फॉर लैंडिंग। इसी केस में चलो एक एग्जांपल बताता हूं। हमने अभी तक इक्विपमेंट्स लिखा हुआ देखा स्टैंडर्ड, ठीक है, या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ देखा नील। तो अगर इक्विपमेंट या एनी अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ रहेगा ILS कैटेगरी 3, या फिर लिखा रहेगा 2, या फिर लिखा रहेगा 3A, इस टाइप से कुछ लिख दिया, तो अगर आपके फ्लाइट प्लान में ILS का कोई कैटेगरी लिखा हुआ है, इसका मतलब पक्का वो ना क्या करेगा, लास्ट क्वेश्चन में जब आप लैंडिंग के लिए क्लियरेंस मांगोगे कुछ ना कुछ कंडीशन चिपकाएगा, बोलेगा नेगेटिव, रनवे विजिबिलिटी लो, ऐसा करके बोल देगा। तो मतलब क्या होता है कि लो विजिबिलिटी में आप लैंड नहीं कर सकते, लेकिन आपको पहले ही एग्जाम में लिख दिया है कि आपके पास है ILS कैटेगरी 3C, सपोज इक्विपमेंट में या तो लिख देगा या एनी अदर इंफॉर्मेशन में लिख देगा ILS कैटेगरी 3C, मतलब आपका जहाज बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो आप बोलोगे कैसे, एयरक्राफ्ट इक्विप्ड विथ ILS category 3C able to land at runway 27 Air India 457, तब से बोलेगा अच्छा ठीक है, लैंडिंग अप्रूव या फिर क्लियर फॉर लैंडिंग। उसने बोला क्लियर फॉर लैंडिंग, अभी बोल दो क्लियर फॉर लैंडिंग, लैंड कर जाओ। डन। यूज देखा, अगर फ्लाइट प्लान में लिखा हुआ है ILS कैटेगरी के बारे में तो वो चीज आएगा यहीं पे, तो वो आपको कुछ निगेटिविटी देगा कि नहीं आप लैंड नहीं कर सकते क्योंकि विजिबिलिटी कम है, आप उसका काउंटर आंसर करके आगे निकल जाओगे, हमारा एयरक्राफ्ट कैपेबल है, लैंड करूंगा। क्लियर? क्लियर है सबको? या फिर अगर आप लैंड नहीं कर सकते हो तो यहीं पे बोलो, ठीक है, सपोज उसने बोल दिया विजिबिलिटी लो, तो आप यहीं पे बोलो अनेबल टू लैंड, ठीक है, इनिशिएटिंग गो अराउंड, कल हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक नहीं है, मतलब समझा रहा हूँ कि आप वहां से एक राउंड मारने के लिए निकल पड़ोगे, लैंड नहीं करोगे। किलो इंडिया अल्फा, इज दैट क्लियर? ऊपर के सारे कंडीशन स्टेप बाय स्टेप। Yes, sir. ऊपर के सारे स्टेप क्लियर है, ईच एंड एवरी आंसर टाइप? हाँ sir. ठीक। Now we will see arrival report, जैसा हमने डिपार्चर रिपोर्ट देखा वैसा ही अराइवल रिपोर्ट देखेंगे। बेंगलोर टावर, एयर इंडिया 457, एयरबस 320, IFR Mumbai to Bangalore, लैंडेड ऑन, जैसा वहां पे बोलते थे ना, डिपार्टेड फ्रॉम The रनवे screen 27, stuck हो गई है. तो लैंडेड ऑन, ओके होल्ड ऑन, confirm now. So I can't see the slide now. Other station, what is the status?
Okay, please confirm now if it is visual. Negative? नेगेटिव दिख रहा है। Sir, visible now. Okay. So arrival report देना है, right? So we will say Bangalore Tower, Air India 457, Airbus 320 IFR, Mumbai to Bangalore, landed on runway 27 at 0702. Suppose, ठीक है? Request instructions to vacate the runway. ठीक है? Request instructions to vacate the runway and taxi instructions to the apron. Air India 457. मतलब समझ में आया इसका कि रनवे पे लैंड कर गया हूं, बताओ कि कौन से रनवे एंट्री पॉइंट के थ्रू मैं बाहर निकलूं या कौन से टैक्सीवे लिंक के थ्रू मैं बाहर निकलूं, रनवे खाली कैसे करूं, और रनवे खाली तो होगा ही होगा, बताओ कौन से एप्रॉन पे किस स्टैंड पे जाना है। तो टैक्सी इंस्ट्रक्शंस टू द एप्रॉन। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्लियर। यहीं पे क्या होता है कि एक बार का रिपोर्टेड डाउट है, वन एग्जामिनर हैड रेज द क्वेरी। हालांकि आज तक इस चीज को मैंने कभी एज ए टॉपिक पढ़ाया नहीं, बट एक एग्जामिनर ने मेरे एक स्टूडेंट को इन 2023 अगस्त या सितंबर, ये दिल्ली वाला सेशन था आई गेस, व्हेन ही वेंट फॉर द एग्जामिनेशन, तो उसको बोला गया कि टैक्सी इंस्ट्रक्शन नहीं, इसको बोलो आप टैक्सी इन इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर टैक्सी इन। टैक्सी इन और टैक्सी आउट वेरी सिंपल। अगर आप टुवर्ड्स रनवे जा रहे हो देन दैट इज टैक्सी आउट, आप रनवे से एप्रॉन की तरफ आ रहे हो मतलब टैक्सी इन। तो जब आप रनवे की तरफ जा रहे हो तो इसको बोलो टैक्सी इन। ठीक है, देख लेना whatever suitable। हालांकि that is not a concept but that is an observation by any examiner, so I thought कि it should be tell। अगर आपको चाहिए आप बोलो टैक्सी इन इंस्ट्रक्शन टू द एप्रॉन। ठीक है, बी मोर एक्यूरेट। क्लियर है? क्लियर है। तो सपोज उसने कुछ बोला कि वैकेट द रनवे वाया टैक्सी वे लिंक किलो 1 एंड गो फॉर एप्रॉन 4 स्टैंड 3 वाया चार्ली 1 डेल्टा 1, ऐसा करके बोला। तो जैसा उसने टैक्सी इंस्ट्रक्शन दिया आप एज इट इज उसको रीड बैक दो और एप्रॉन पे जाके पार्क कर जाओ। ठीक है, दैट आई वोंट टेल यू नाउ। जो भी वो टैक्सी इंस्ट्रक्शन देगा उसको डायरेक्टली फॉलो करो। और जब आपने अपना जहाज को पार्क कर दिया ऑन द स्टैंड ओवर द बे, तो एटीसी को बस एक कॉल दे देना है। ठीक है, अराइव्ड ऑन स्टैंड नंबर 4 एप्रॉन 3। ठीक है, स्विचिंग ऑफ इंजन एयर इंडिया 457। ठीक है, स्विचिंग ऑफ इंजन्स। आपको जिसने इंस्ट्रक्शन दिया टैक्सी करते टाइम कि ठीक है मूव टू स्टैंड 4 एप्रॉन 3। ठीक है, स्टैंड 4 एप्रॉन 3 वाया टैक्सी वे सो एंड सो, कुछ भी बोल सकता है, चार्ली डेल्टा अल्फा। तो आप जब वहां पे पहुंच जाओगे तो बोलोगे अराइव्ड ऑन स्टैंड 4 एप्रॉन 3 स्विचिंग ऑफ इंजन एयर इंडिया 457। बस हो गया, आरटी का कॉल खत्म। So these are the ongoing conversation। इतना कॉल आपसे करवाएगा कभी नहीं, बट आई हैड एक्सप्लेन्ड कि अगर बीच का कोई सा टर्म आ गया देन हाउ यू विल एक्सप्लेन, हाउ यू विल कॉल। सपोज क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 4 को कई बार 3 पार्ट में स्प्लिट कर देगा। पहला क्वेश्चन दे दिया आपका पोजीशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग कि यू आर 20 नॉटिकल माइल टू बैंगलोर, बस
तो आप टैक्सी या लैंडिंग इंस्ट्रक्शन मांग लोगे। अगला क्वेश्चन दे देगा यू आर ऑन फाइनल्स, तो भी आपको पता होना चाहिए कि फाइनल्स पे पहुंच गए तो क्या बोलेंगे कि एस्टेब्लिश्ड, होल्ड ऑन रनवे 27, अलाइन विद रनवे, या फिर रनवे 27 कैप्चर्ड, लैंड करूं क्या। फिर अगला क्वेश्चन दे देगा यू हैव लैंडेड, तो लैंड करने के बाद क्या मांगना है आपको, लैंड करने के बाद मांगो इंस्ट्रक्शंस टू वेकेट द रनवे एंड टैक्सी इंस्ट्रक्शंस टू रीच टू द एप्रॉन। Done? So these are the arrival of an aircraft and parking to the stand. Am I clear for all? क्लियर। Yes, sir. So these are the instructions while you are going to land, and these are the communication how you will communicate while prepare for the landing. Now, अब कंडीशन आता है कि जब आप लैंड करने वाले थे उस टाइम पे किसी भी रीजन से आप लैंड नहीं कर पाए, सो समथिंग इज नोन एज DH या फिर DA बोलते हैं इसको, डिसीजन हाइट और डिसीजन अल्टीट्यूड, कि आपको उस रनवे पे लैंड करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड कर लो एक खास अल्टीट्यूड पे। अगर नहीं कर पाए तो एक्सीडेंट होने की गुंजाइश है। मतलब आप लैंड करने जा रहे थे, अचानक से यू हैव समथिंग फेस्ड, यार लैंड नहीं हो पाएगा, either your speed is too high, either you are not able to make over the aiming point, either your engine has some malfunction, either your component having some failure, either you are not able to receive ILS data, ILS parameter। तो इस केस में आप क्या करोगे, गो अराउंड करोगे, आप लैंड नहीं करोगे, आप एयरक्राफ्ट को यहीं से ऊपर उठा के चल दोगे। तो एक होता है डिसीजन हाइट, जो कि एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस और लैंड करने वाले रनवे के ऊपर करंट वेदर को देखते हुए बताया जाता है, जो कि ओवरऑल आई थिंक, ठीक है, नॉट आई थिंक, दिस इज फॉर श्योर, फॉर एनी एयरपोर्ट डिसीजन अल्टीट्यूड फिक्स रहता है, एयरपोर्ट के केस में भी और एयरक्राफ्ट के केस में भी डिसीजन अल्टीट्यूड आपका फिक्स रहता है। तो इन दोनों में से जो भी आपका इंफॉर्मेशन प्रायर पड़ता है, पहले पड़ता है, उसको फॉलो करो। सपोज आपके एयरक्राफ्ट का डिसीजन अल्टीट्यूड है 1000 फीट और एयरपोर्ट का डिसीजन अल्टीट्यूड है 800 फीट, तो आपको 1000 फीट से ही डिसाइड कर लेना है कि लैंड करूं या नहीं, ठीक है। और नहीं लैंड कर पाओगे तो एक गो अराउंड मार लो। ये इसलिए बनाया जाता है, सपोज आपका डिसीजन अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट का इसलिए फिक्स रहता है कि जब आप गो अराउंड करते हो ना, सबसे पहले तो जब आप लैंड करने आते हो आपका फ्लैप फुल रहता है ऑलमोस्ट मैक्सिमम केस में, या फिर फ्लैप आपका 4th पोजीशन या 4 डिग्री, नॉट 4 डिग्री, शेड्यूल एयरलाइन में इसको कुछ तो बोलते हैं, फ्लैप 1, ऐसा क्या बोलते हैं, इफ यू नो समबडी कैन हेल्प मी टू राइट दैट टर्म, क्या बोलते हैं, फ्लैप 4, फ्लैप 3, ऐसा क्या बोलते हैं while landing, do you know that term? Okay, okay, no very problem. See, flaps are basically graduated on degrees, suppose 9 degree, 18 degree, 28 degree and 45 degree. OEM had suggested कि while landing, land at 28 और 45, तब आपका स्मूथ लैंडिंग होगा। तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसी चीज को शायद एयरलाइन में कुछ तो बोलते हैं, फ्लैप 4 पोजीशन, फ्लैप 3 पोजीशन, फ्लैप सेकंड, इस टाइप से जो भी उनका एंगल है उसके हिसाब से एयरलाइनर में स्प्लिट करके रखा है उन्होंने, फ्लैप 1, फ्लैप 2, 3, 4 इस टाइप से कुछ बोलते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट बेसिक टर्मिनोलॉजी यही है कि एंगल के हिसाब से उन्होंने नाम दिया हुआ है। फ्लैप 4 पोजीशन मतलब 4th पोजीशन ऑफ फ्लैप, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्लैप डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आपका फ्लैप रहेगा मैक्सिमम एक्सटेंडेड पोजीशन पे, स्पीड आपका कम रहेगा, ड्रैग आपका बहुत ज्यादा रहेगा। इस केस में अगर आपको गो अराउंड करना है ना तो आपको थ्रोटल फुल करना पड़ता है, एंड कई बार इंजन गो बियॉन्ड देयर रेंज,
जो कि नॉर्मल रेंज में आप उसको ऑपरेट नहीं करते हो, उससे भी ज्यादा पावर लगाना पड़ता है इंजन को उठाने के लिए योर एयरक्राफ्ट। तो अगर आप डिसीजन हाइट पे डिसाइड नहीं कर पाए कि लैंड करना है कि नहीं, तो बाद में आपसे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होगा भी नहीं। एंड इन द केस अगर हो गया तो इंजन पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो आप यहीं पे डिसाइड कर लो कि लैंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आराम से गो राउंड कर लो, दैट विल बी अ सेफ गो राउंड। बट अगर आप सोचोगे कि रनवे पे ऐसा टच करा के जहाज को उठा के लेके जाना है तो मुश्किल है, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल एयरक्राफ्ट। अगर आपका एयरक्राफ्ट ILS कैटेगरी 3 कैटेगरी 2 इक्विप्ड है तब आप ये कर पाओगे, बाकी जनरली सारे एयरक्राफ्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप डिसीजन हाइट से पहले पहले लैंड नहीं करवा पाए तो एक टर्म बोलते हैं मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर, यानी आपने अपना अप्रोच मिस किया एंड यू आर गोइंग फॉर अ गो अराउंड। ये हम लोग देखेंगे कल। अगर किसी रीजन से हम लैंड नहीं कर पाए तो दोबारा से लैंड करने का क्या प्रोसीजर है, ये हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज हमने देखा हाउ टू लैंड परफेक्टली, कल देखेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो सपोज ILS फेल हो गया या कुछ भी गड़बड़ हो गया, बर्ड्स बैठा है रनवे पे तो आप लैंड नहीं कर सकते, उस केस में आप क्या करोगे, गो अराउंड करोगे। कैसे करना है दैट वी विल सी टुमारो। ठीक है, एवरीवन, इज दैट गुड? ऑल गुड। ठीक है, नाउ बिफोर एंडिंग द क्लास वी विल सी वन थिंग एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ILS कैटेगरीज ये आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, ILS के कैटेगरी आपको रटे होने चाहिए एग्जामिनेशन में खास करके, बिकॉज इन पार्ट 2 दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर क्वेश्चन जो कि AME एज वेल एज पायलट कैंडिडेट दोनों से पूछे जाते हैं। ILS के कैटेगरीज क्या क्या है, कैट A क्या है, कैटेगरी 1 2 3 क्या है, 3A 3B क्या है, इस टाइप से, और उसके क्या मीनिंग्स हैं ये आपको समझाने पड़ते हैं to the examiner in part 2. So I am not able to find it here. चलो मिल गया। This ILS categories, ठीक है, if you search on Google you may get different parameters. If you go to anyone's manual you may get different parameters. So what you will do, you will check in CAR। ठीक है, CAR मुझे exactly भी याद नहीं, I think that is given in section 9 I guess, section 9 या section 8 में दिया हुआ है about ILS categories। ठीक है, this is from CAR, authenticate data from DGCA। So if your aircraft is having category A approved or your airport is having category A ILS landing system, ILS का category 1, ठीक है, category 1, इसका मतलब होता है कि आपका रनवे विजिबिलिटी रेंज कम से कम 550 मीटर होना चाहिए और डिसीजन हाइट है 200 फीट। यानी अगर आप 200 फीट से नीचे आ गए और विजिबिलिटी 500 से कम है तो आप लैंडिंग नहीं कर पाओगे सेफली। यानी अगर आपके एयरक्राफ्ट में कैटेगरी 1 ILS है तो 500 मीटर कम से कम आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, 550 मीटर एग्जैक्टली, एंड 200 फीट पे ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि लैंड कर पाओगे कि नहीं। देन कैटेगरी 2, रनवे विजिबिलिटी रेंज कम से कम 300 मीटर होनी चाहिए और डिसीजन हाइट 100 फीट। 3 अल्फा, रनवे विजुअल रेंज 175 मीटर, डिसीजन हाइट 50 मीटर। कैटेगरी 3B, 50 मीटर का विजिबिलिटी, 50 फीट का डिसीजन हाइट। रनवे का कैटेगरी लैंडिंग का कैटेगरी 3C, नो रनवे विजुअल रेंज, नो डिसीजन हाइट, आंख मूंद के लैंड करो। ठीक है, सो दीज आर द ILS कैटेगरीज। पार्ट 2 में पूछा जाता है फॉर श्योर, मेनी टाइम्स दिस इज बीइंग डिस्कस्ड, you should know and you should consider this also while landing. Am I clear over this topic? ILS category समझ में आए? ठीक है, yes, no, anything, is that clear? क्लियर। Okay,
So I think we should not explain that much, नहीं तो confusion हो जाएगा और ठीक है. There are certain topics which are left to explain, that is not more. ठीक है, as you can see, हमने आज अपना अराइवल रिपोर्ट देख लिया. ठीक है, वेरी सिंपल, यानी लेक्चर 20 कंप्लीट. रिले मैसेज देख लिया. ठीक है, फाइनल्स का हमने कॉल देख लिया. ठीक है, डिसेंड या अराइवल का रिक्वेस्ट देख लिया कि कैसे लैंड करना है. Certain topics which are left to explain, I'll mention it here. That will be explained tomorrow, and things are not very much left over to explain. कुछ ज्यादा बचा नहीं है पढ़ाने को बताने को. कल हम लोग देखेंगे मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर एंड गो अराउंड प्रोसीजर, मैप एंड गैप जिसको बोलते हैं. टुगेदर वी विल आल्सो सी रेडार वेक्टरिंग की व्हाट इफ आपका ट्रांसपोंडर फेल हो गया या फिर आपका नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया, तो कैसे एटीसी आपको हेल्प करेगा लैंड कराने के लिए. एंड टुमारो ओनली वी विल सी सेक्टर रिक्वेस्ट. अगर आपको किसी सीजन में किसी एरिया में कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ फ्लाइंग करनी है फॉर अ सर्टेन मोमेंट, हाउ यू विल डू दैट. डन. सो टुमारो द क्लास विल बी ओवर. ठीक है, सिलेबस विल बी कंप्लीटेड. So these three topics are pending to explain. I'll explain tomorrow. Done. And I think this much is enough for today. I'm leaving half an hour early. Please go and do practice over the topics that I had explained today, and RVSM wala case, and ATC back in contact, request deviation at on. इन सारे टॉपिक्स पे थोड़े जाके फिर से प्रैक्टिस करिए. ये सारे लेंथी टॉपिक्स हैं, इसके आंसर लंबे लंबे होते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करो. कल हम लोग सिलेबस को फिनिश कर देंगे. डन. इज दैट ओके एवरीवन? ओके, चलो, सी यू टुमारो देन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. डू सम मोर प्रैक्टिसेस एट योर ओन, एंड कल हम लोग सिलेबस फिनिश करेंगे एंड देन विल हैव अ मॉक एज वेल. ठीक है, चलो, गुड नाइट Okay, sir. एवरीवन. Good night. सी यू टुमारो.